A very good morning, all the students who are watching this video right now. So, as you all know, students, because of the corona pandemic, our education minister वर्षा गायकवाड़ जी ने एक डिसीजन लिया है टू पोस्टपोन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड दैट शुड नॉट अफेक्ट यू ऑल एट ऑल बिकॉज सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट. In today's video, बच्चे लोग, as you all know, this year a question bank has been released from the government because आप students की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है, ये मद्देनजर रखते हुए कुछ questions उन्होंने निकाल कर submit किए हैं. So in today's video, बच्चे लोग will be focusing on question bank of secretarial practice. सब SP subject का question bank आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रही हूं एंड इन दिस वील बी फोकसिंग फर्स्ट ऑन दोज क्वेश्चंस जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. यस, आपने सही सुना. ओवरऑल टोटल मेन क्वेश्चंस 8 होते हैं. इन 8 में से टुडे वील बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस वेयर इन यू ऑल विल स्कोर फुल मार्क्स, मतलब आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं. Now this particular video will be divided into 3 parts. 3 अलग parts में मैं इस video को cover करूंगी. So I request all of you to listen to it, listen to the answers, mark it out and study these answers perfectly. So no doubt that you will score out of marks at least in these questions. तो इन questions में आपके out of mark तो 101% पक्के ही होंगे. So without wasting much time, बच्चे लोग, let's begin with the discussion of the question bank which is released by the government. And I am discussing right now, as I told you, secretarial practice का question bank with you all. So the guarantee given is आपको पूरा पेपर इसमें से आएगा ऐसा ही guarantee नहीं है, but yes, 90 to 92% questions इसी में से पूछे जाएंगे. And maybe the options you will have, तो आप perfectly options में से choose कर सकते हो जो इन्हीं में से हो सकते हैं. So 90 to 92% maximum आपका पेपर इस question bank से related होगा and the question bank is covering majority of the questions. So even if ऐसा कोई question आता है तो I think option wise में you should not find it difficult. So the very first question, as you can see over here, is select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. Now, as y'all read it properly, बच्चे लोग, please इसका direct answer मत लिखना. Statement को फिर से दोबारा लिख के आंसर को underline करना है आपने. Rewrite the statement बोला है, so please do not write direct answers over here. So the very first question is, finance is the management of dash affairs of the company. So the answer is monetary. Corporate finance deals with the acquisition and use of dash by business corporations. Answer is capital. The benefit of depository receipt is ability to raise capital in dash market, international. Under dash method, issue price of shares is based on bidding, book building. In dash, shares of a company are offered to the public for the first time. Answer is IPO, initial public offer. Moving forward, dash is offered to existing equity shareholders. Answer है rights issue. Secured debentures must be redeemed within dash from the date of its issue. Answer is 10 years. Debenture certificate must be issued within dash of allotment of debentures. Answer is 6 months. The contract between company and debenture trustees of the company is called as debenture trust deed. Deposit can be accepted for a minimum of 6 months and maximum for 36 months. Company issues dash to invite its members to subscribe for its deposit scheme. Circular. Members के लिए circular, अगर public होता then the answer would be advertisement. Return of deposit must be filed every year on or before 30th June. Continuing forward, secretarial correspondence with the members should be prompt and precise.
Debentures repayable after a certain period are dash debentures redeemable. The rate of interest payable on debentures is fixed. Depositors are dash of the company creditors. In physical mode, the securities are held in dash form paper. Risk of losing certificate exists in dash mode physical. Depository Act was passed in the year 1996. In India, ISIN for corporate securities is allotted by NSDL. Dividend is recommended by Board of Directors. Interim dividend is declared by Board of Directors. Final dividend is declared by shareholders. Dividend cannot be declared out of capital. Payment of dash dividend must be authorized by Articles of Association interim. Money market is a market for lending and borrowing of funds for dash term. Answer is short term. So बच्चे लोग ये 26 फिलअप्स में आई डोंट थिंक यू मस्ट फेस एनी डिफिकल्टी, और ये आपने कर लिए तो अच्छे से आप आराम से स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ मार्क्स. ध्यान रखना, पूरा स्टेटमेंट आपने दोबारा लिख के आंसर अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज मैच द पेयर्स. अगर पूछा जाता है तो ओवरऑल, जैसे मैंने पहले भी पेपर पैटर्न डालते समय आपको एक्सप्लेन किया है, आउट ऑफ ए से लेके जे तक आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसमें से कोई भी 4 पूछे जा सकते हैं. सो ओवरऑल वी आर डिस्कसिंग ऑल द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सो द पहला मैच द कॉलम बोल रहा है एडीआर. एडीआर का फुल फॉर्म इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. तो इसका आंसर है 7 यूएसए. बोनस इशू. बोनस इशू का आंसर है इट इज इशू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू बाय फिक्स्ड एसेट्स. तो इसका आंसर है फिक्स्ड एसेट्स. क्रेडिट रेटिंग. दिस इज अ रेटिंग एजेंसी जो आपको रेटिंग्स देती है, जैसे 5 on 5, 10 on 10, 6 out of 10. सो दिस रेटिंग जो देती है उसमें से एक इंस्टीट्यूट का नाम है क्रिसिल. इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट करते समय जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल. सो पहला मैच द कॉलम इज डन. मूविंग ऑन टू द सेकेंड मैच द कॉलम बच्चे लोग. फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया बॉन्ड होल्डर्स, तो बॉन्ड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट गिवर्स, these are all examples of creditors. अभी हमने fill in the blanks में भी देखा था, depositors are the creditors of the company. So bond holders are also creditors of the company. IPO full form is initial public offer. Initial का मतलब होता है first time public offer. Corporate finance deals with acquisition and use of capital. फाइनल डिविडेंड इट इज डिक्लेयर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग. नाम में मीनिंग है ना फाइनल, सो एजीएम में डिक्लेयर किया जाएगा. प्रेफरेंस शेयर्स दे आर ऑलवेज गिवन फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. पहला प्रेफरेंस भी मिलता है एंड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी उनको दिया जाता है. सो आई होप यू आर क्लियर विद टू मैच द कॉलम्स. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन, डिबेंचर सर्टिफिकेट. इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट. FPO इसका आंसर है एनी इशू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, बिकॉज फुल फॉर्म है फर्दर ऑन पब्लिक ऑफर. वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सम ऑफ करंट असेट्स. फाइनल डिविडेंड इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड बट डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स. शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं. Preference share capital, it is also called as safe capital. Coming on to the next match the column, debenture holders, again the answer is creditors. IPO first time public offer. Charge on assets is always created on secured deposits. SEBI इसीलिए बनाई गई है so that to protect the interest of investors in the securities market. Issued within 2 months of allotment of share is called as share certificate.
सो आई होप आपको इन मैच द कॉलम्स में कोई दिक्कत नहीं आई होगी. The next type of objective which can be asked is write one word or term or phrase which can substitute each of the following statements. तो पहला क्वेश्चन पूछा है कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो क्वेश्चन में ही आंसर है बच्चे लोग, दिख रहा है आपको फिक्स्ड असेट्स. तो फिक्स्ड असेट्स के लिए एक ही कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल. The sum of current assets, अभी अभी हमने मैच द कॉलम में पढ़ा, it is called as working capital. The excess of current assets over current liabilities को भी क्या बोला जाता है, working capital. The process of converting raw material into finished goods is called as production cycle. The value of the share which is written on the share certificate उसको बोला जाता है face value. The highest bid price in book building method, दो प्राइस होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग मिनिमम प्राइस और एक होता है हाईएस्ट प्राइस. मिनिमम को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, FLOOR, और हाईएस्ट प्राइस को बोला जाता है सीलिंग प्राइस. डॉक्यूमेंट विच इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्टेन शेयर्स ऑफ अ कंपनी. तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे शेयर सर्टिफिकेट. Authority which has power to issue debentures, it is called as board of directors. Company which can accept deposits from public up to 35% of its paid up share capital and free reserves, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे government company. The minimum tenure of a deposit, minimum 6 months, maximum 36 months. So I hope you all are clear with these 3 types up till now. बच्चे लोग पिक्चर अभी बाकी है और भी आना है तो सुनते रहो. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. द शेयर होल्डर्स टू whom the bonus shares are issued, existing shareholders. Return of deposits on maturity date उसको बोला जाता है repayment of deposit. The organization which holds the securities in electronic mode उसको बोलते हैं depository. This process converts securities into electronic form from physical form. इसको बोलते हैं dematerialization process. This means securities are without distinctive identity number. Answer है fungibility. The meeting where final dividend is declared, AGM, annual general meeting. Dividend declared between 2 AGMs, interim dividend. A market which exclusively deals with the new issue of securities, primary market. A specific place where trading of securities is arranged in an organized method, share market. The first stock exchange to be recognized by the Indian government under the Securities Contract Regulation Act, answer है BSE, Bombay Stock Exchange. आगे बढ़ते हैं. The next set of questions coming forward is true or false. So finance is related to money and money market. Answer is true. Corporate finance brings coordination between various business activities. Answer है true. Fixed capital is also referred to as circulating capital. False. किसको बोलते हैं पे? Working capital. Very good. Working capital stays in the business almost permanently. गलत जवाब. Permanently कौन सा capital होता है? Fixed capital. Equity shareholders enjoy fixed rate of dividend. Answer is false because preference shareholders enjoy करते हैं. Share certificate is issued for partly or fully paid up shares. Answer is true. Bonus shares are issued at a discounted price to the equity shareholders. False, क्योंकि bonus shares free of cost issue किए जाते हैं. No money is charged. Floor price is the highest bid price under book building method. False, उसको क्या बोलते हैं? Ceiling price. Floor price किसको बोलते हैं? The minimum price. Debenture holders have no voting rights. Answer is true. Eligible public company can collect deposits from its members. True. Government company can collect deposits from its members. False. Debenture holders get regular dividend. False. Regularly कैसा मिलेगा? कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बनाएगी.
So how can the debenture holders get regular? It depends upon the profitability of the company. Fixed deposit is a short-term source of finance for the company. False. A private company can accept the deposit from the general public. Galat jawab. False. India has a multi-depository system. True. Physical mode of holding securities is risky. True. Dividend cannot be paid out of capital. Answer is true. NSE, National Stock Exchange, is the regulator of all the stock exchanges in India. Answer is false. It is SEBI, Securities and Exchange Board of India. The next set of question class can be asked is find the odd ones out. Now for fill in the blanks, answer in one word. Questions नहीं लिखा तो चलेगा बच्चे लोग. Sorry, true or false or answer in one word. जहां पे fill in the blanks पूछा है, question is compulsory. Similarly, find the odd man out में आप directly भी answer लिख सकते हो odd man या question लिख के then you can cancel it out or underline जैसे मैंने किया है यहाँ पे. So the very first set of question asked is land and building, plant and machinery, cash. अब cash क्यों odd man out है बच्चे लोग? Because the first two are fixed assets. Cash is working capital में आता है. Current assets. Debenture, public deposit, retained earnings. Answer is retained earnings because इसको बोलते हैं internal source of financing. ये कंपनी के इंटरनल फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ है. Whereas debenture and public deposit is कंपनी बाहर वालों से borrowed capitals बोलते हैं इन दोनों को. ESOS, ESPS, rights share. Rights share is the wrong answer because ये पहले दो साथ में आते हैं. Rights share is issued only to the existing shareholders of the company. Equity shareholders को दिया जाता है. Debenture trustees, trust deed shareholders. Obviously, debenture trustees वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कंपनी और उनके बीच में जिसको बोलते हैं debenture trust deed. That is why shareholders is odd man out. Private company, non-eligible public company and government company. So the odd man out is government company, whereas private and non-eligible public company अपने members से भी deposits ले सकती है, whereas government company cannot accept deposits from its members. अभी हमने true or false में भी देखा था. Deposit trustee, deposit trust, deed, special resolution. Of course the answer is special resolution. Same explanation जो मैंने आपको fourth point में दिया था. Secretary, board of directors, lucid language. So correspondence करते समय secretary has to follow good language, lucid language. That is why board of directors is odd man out. Debenture holder, shareholder, SEBI. Of course, answer is SEBI. NSDL, CDSL, NBFC. Answer is NBFC because बाकी दो आपके क्या है? Depositories के नाम है. Depository, DP, that is depository participant, and RBI. So RBI is the odd man out. It is the Central Bank of India. DRF, demat request form. RRF, remat request form. PPF, provident fund होता है. So PPF is the wrong answer. Public Provident Fund. Final dividend, interim dividend and interest. Of course पहले दो example dividend के हैं. The last one is odd man out as it is interest जो किस पे दिया जाता है आपको? Loans पे, correct? Debentures पे दिया जाता है, whereas dividend is given on shares. So with that, odd man out complete होता है बच्चे लोग. The next set of question which can be asked is fill in the blanks पे आते हैं. अभी complete the sentence बोला गया है. When there is boom in the economy, of course sales will increase. The finance needed by business organization is termed as capital. Money invest करते हैं ना business में, उसको capital बोलते हैं. In book building method, the final price at which shares are offered to the investors is called as cut-off price. To protect the interest of debenture holders, company किसे appoint करती है? Debenture trustees. Company cannot accept or renew deposits which are repayable on demand. जब जरूरत पड़ेगी, public पैसा मांगेगी,
ऐसे डिपॉजिट्स कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट. Account which is used only for repaying deposits is called as deposit repayment reserve account. बहुत सिंपल सा नाम है. डिपॉजिट रीपे कर रहे हो तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. A company capitalizes its reserve fund for issue of bonus shares. The process which converts digital securities into physical form is called as rematerialization. तो इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल रीमैट बोलते हैं, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक डीमैट बोलते हैं. The first depository of India, NSDL. The word dividend is derived from the Latin term dividendum. So are you all clear बच्चे लोग? A, B, C, D, E, F तक हो गया अपना. बढ़ते आगे, complete the table from the brackets given. अब सेम वे बच्चे लोग इसका भी क्वेश्चन लिखना है और जो आंसर है उसको या तो बक्से में डालो या तो अंडरलाइन करो. ऐसे ही छोड़ के मत आना कि भाई तुम डिसाइड कर लो भाई आंसर कौन सा है और क्वेश्चन कौन सा है. तो 10 बार बोल रही हूं, प्लीज ध्यान दे दो. ओके, सो फर्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स. सो व्हाट विल बी द आंसर नीचे दिए गए ब्रैकेट्स में से? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. डैश इज रिटन कम्युनिकेशन. तो रिटन कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डेंस. 36 मंथ्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. डैश इज चार्ज ऑन असेट्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स. कैश सेल्स, ऑप्शन बचा लेस वर्किंग कैपिटल. क्लियर है पहला टेबल? चलो नीचे आ जाते हैं. रिटर्न ऑन शेयर्स, तो शेयर्स पे क्या मिलता है बच्चे लोग? ब्रैकेट में से ढूंढ के बताओ. डिविडेंड, करेक्ट. कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड को क्या बोला जाता है? किस लिए किया जाता है? बोनस शेयर्स. फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ द वर्ल्ड वाज इन जर्मनी. डैश इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. डैश बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कहां पे होता है? सेकेंडरी मार्केट. तो क्लियर है दोनों टेबल? नेक्स्ट टाइप के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं जो है आंसर इन वन सेंटेंस. अभी आप लोग देख रहे हो बच्चे लोग, मैंने आंसर हाईलाइट किया है एंड आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ फुल सेंटेंस. तो आपने एक वर्ड में नहीं लिखना है आंसर, यू हैव टू आंसर इन फुल वन सेंटेंस. आया समझ में? विद अ फुल स्टॉप. जैसे डिफाइन कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो व्हाट विल बी योर आंसर? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, फुल स्टॉप. When does transmission of share takes place? तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं. मतलब कोई डीलिंग की या लीगली वो प्रोसेस नहीं लगता, लॉ के ऑपरेशन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते. तो ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है? 3 कंडीशंस है. इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस. तो समझ रहे हो कैसे लिखना है आंसर? What is the time limit to issue share certificate on allotment of shares? The share certificate should be issued within 2 months from the date of allotment of shares. Name the document which is an agreement between the debenture trustee and the company. अब भी हमने डिस्कस किया था. So the agreement between the debenture trustees and company is called as the debenture trust deed. Which companies can accept deposits from the public? Only eligible company and government company can accept deposit from the public. What is deposit trust deed? तो debenture trust deed क्या था? Agreement between debenture trustee and the company. तो deposit trust deed क्या होगा? The agreement between deposit trustees and the company is called as deposit trust deed. And मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आंसर elaborate किया है. The agreement done between deposit trustees who are appointed to protect the interests of the depositors in case if the company defaults in repayment of deposits. तो उसको अपन deposit trust deed बोलते हैं. और आप लोगों ने नहीं भी elaborate किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, it will be considered.
What is the return on deposit? Every depositor gets a fixed rate of interest as return on deposit. Also, a company has to file on or before 30th June every year with the registrar of companies a return of deposit which gives the details of deposits with the company as on 31st March of that year. तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया. एक है वो पूछ रहा है आरओसी के साथ कब फाइल करना है बिकॉज इट गिव्स द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स विद द कंपनी, और एक बोलता है रिटर्न ऑन डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट पे. तो सेफ्टी के लिए आप दोनों भी ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट इज इंटरेस्ट वारंट? वारंट का मतलब होता है इट इज अ चेक. तो डिविडेंड वारंट पूछा तो अगेन इट इज अ चेक. इंटरेस्ट वारंट पूछा अगेन इट इज अ चेक इशूड बाय द कंपनी to the depositor, debenture holders या bond holder of a company for payment of interest to the registered address of the concerned creditors. ये तीनों creditors ही है ना, इन्होंने अपना पैसा दिया है तो उसके ऊपर इनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट किस पे मिलता है, डिबेंचर्स पे, डिपॉजिट्स पे, बॉन्ड्स पे. So that is why I have written all the three, or you can write it is given to the creditors of the company because for the payment of इंटरेस्ट. डिविडेंड होगा तो क्या लिखोगे, शेयर होल्डर्स. ओके, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, कंफ्यूज मत होना. What is depository system? In a depository system, the transfer and settlement of securities is done electronically. The depository system maintains accounts of the shareholders, enables the transfers, collects dividends, bonus shares, etc. on behalf of shareholders. तो basically जहाँ पे transaction electronic mode में होता है, that is called as depository system as far as securities are concerned. Okay. Who has the right to recommend the dividend? The board of directors has got a right to recommend the dividend. What is final dividend? The dividend declared and paid after the closing of the financial year is called as final dividend. What is financial market? Financial market is a market where financial assets, that is financial instruments, are exchanged or bought and sold. It acts as an intermediary between investors and borrowers. तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं. ओके. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आता है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा ये बच्चे लोग, आपने फिर से स्टेटमेंट लिखना है. जो अंडरलाइन किया है वो गलत जवाब है, उसके बदले आपने सही जवाब लिखना है एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन दैट सही जवाब. समझ रहे हैं? तो जो आपको आंसर बक्से में दिख रहा है वो आंसर आप उस अंडरलाइन वर्ड के ऊपर लिखेंगे या उसके मिटा के वहां पे लिखेंगे एंड देन आपको उसको अंडरलाइन करना है. समझ रहे हैं? सो प्लीज डोंट राइट डायरेक्ट आंसर्स. प्रेफरेंस शेयर्स गेट्स डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. आंसर फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स्ड है. तो आपका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर्स गेट्स डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, और फिक्स्ड को अंडरलाइन करेंगे. Duplicate share certificate must be issued within 1 month from the date of application. सही आंसर है 2 months. A company issuing irredeemable debentures must create a charge on assets of the company. आंसर irredeemable नहीं है, आंसर है secured. To rate its debentures, a company appoints underwriters. गलत जवाब, सही जवाब है credit rating agency. Company appoints credit rating agency to protect the interest of depositor. Sahi jawab is deposit trustees. Deposit receipt is issued within 7 days from the date of receipt of deposits. Sahi jawab hai 21 days. Banking system leads to scrip-less capital market. Sahi jawab is depository. Securities are fungible in physical mode. The right answer is electronic. ISIN is a code given to a company. The right answer is securities of a company. Dividend is paid to creditors. The right answer is interest. Special resolution must be passed to declare final dividend. Answer is ordinary.
In primary market, already existing securities are traded. The right answer is in secondary market. The last set of objective which can be asked is arrange in proper order. याद है ना हिस्ट्री में chronological order होता था, events year wise arrange करने पड़ते थे. Similarly यहाँ पे आपको procedures को arrange करना है. तो पहला उन्होंने दिया है obtain credit rating, entry in register of debenture, receive application with money. तो बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ डिबेंचर है, इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग. उसको कंपनी अपने लिए क्रेडिट रेटिंग लेगी ना, भाई मेरे कंपनी को अच्छा रेटिंग देना सो दैट मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा देने के लिए तैयार रहें. आफ्टर क्रेडिट रेटिंग आएगा आपका सी विच इज रिसीविंग एप्लीकेशन विथ मनी, एंड फिर आपका लास्ट आएगा एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स. सेकेंड वाला भी उसी का एक हिस्सा है. इन्होंने बोला है इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, इशू प्रोस्पेक्टस, ओपन बैंक अकाउंट. तो सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी. याद है ना बच्चे लोग, प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन टू द पब्लिक टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, है ना. तो कंपनी को पैसा दो, उसका शेयर्स खरीदो, ये प्रोस्पेक्टस होता है. उसके बाद आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे जिसमें आप एप्लीकेशन विथ मनी लेंगे, ठीक है ना. एंड देन कम्स लास्ट में इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. सो आपको दिख रहा है मैंने आंसर्स लिखे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं होल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट, इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी. तो पहला होगा होल्ड द बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट, रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी, एंड लास्ट में इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर ली तो देयर इज नो डाउट बच्चे लोग कि आपको आउट ऑफ मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, जो कि है 20 on 20 विदाउट अ डाउट. ठीक है. नेक्स्ट इसमें मैं और एक क्वेश्चन लेने वाली हूं, डिस्कस करने वाली हूं, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन. यस, एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. सो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आउट ऑफ 4 on 4 मतलब 12 के 12 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं. और उसका एक ही तरीका है ये मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, बस आपने एग्जैक्ट अच्छे टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, फिर कोई दिक्कत आने का सवाल ही नहीं उठता. तो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं बोर्ड के तरफ से, तो आपको पूरे 12 चैप्टर्स में से सिर्फ 10 डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं जो कि बहुत सिंपल वाले हैं. तो ये भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते तो 20 और 12 32 मार्क्स आपको आउट ऑफ मिल सकते हैं 80 में से. और भी क्वेश्चंस हैं बट आज हम इस वीडियो में ये ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. तो आपके 32 मार्क्स कंफर्म्ड है, कहीं नहीं जाएंगे. जैसे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने दिखाया है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. सो ये पॉइंटर्स लिखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप लिखते हो तो कोई बात ही नहीं है. इट इज द परफेक्ट वे टू राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिकॉज इन पॉइंट से हमें पता लग जाएगा कि आपको आंसर समझ में भी आया है या नहीं. सो डिस्टिंग्विश में सबसे पहले तो 4 मार्क का आंसर है. तो प्लीज प्लीज बच्चे लोग हर डिस्टिंग्विश में कम से कम 6 पॉइंट्स तैयार करके जाओ, ताकि 6 में से आप 5 याद रखोगे तब जाके अच्छे से 4 लिख पाओगे ना. तो 4 से कम मत लिखना, 6 पढ़ो, 6 याद रखो और एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख कर आओ 4 मार्क के लिए. ठीक है. सो सबसे पहला फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल का स्मार्ट कोड मैंने बनाया है. अगर आपको याद रखना है तो पहला स्मार्ट कोड है मिस्टर स्पून, MRSPOON. तो M का मतलब इसमें होगा मीनिंग, R का मतलब इसमें होगा रिस्क, S का सोर्सेस, P का पर्पस, O का ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स और N का नेचर. तो इस तरीके से आप पॉइंट्स याद रख सकते हो मिस्टर स्पून. तो M से मीनिंग, फिक्स्ड कैपिटल इज इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स, मतलब आप फिक्स्ड असेट्स में डालते हो. वर्किंग कैपिटल सम ऑफ करंट असेट्स हो गया मीनिंग. R रिस्क, रिस्क किस में ज्यादा है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स मोर रिस्क, वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व्स लेस रिस्क.
एस सोर्सेस, कहां से लेकर आते हो आप? तो फिक्स्ड कैपिटल कैन कम फ्रॉम सेलिंग द शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। पी से क्या था? पर्पस, क्यों लाते हो आप फिक्स्ड कैपिटल? ताकि आप फिक्स्ड असेट्स खरीद सको ना, सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है आपको? टू फुलफिल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टर का? इन्वेस्टर इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल में रखता है टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट, और वर्किंग कैपिटल में टू गेट इमीडिएट रिटर्न्स। और एन से क्या है? नेचर, फिक्स्ड कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस परमानेंटली, वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग या टेम्पररी रहता है, इट इज नॉट फिक्स्ड। बस सिंपल सा आंसर है। सो कोई भी 6 पॉइंट्स बच्चे लोग तैयार किया तो भी काफी है, जैसे मैंने बोला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका स्मार्ट कोड मैंने इस तरीके से बनाया है, MTV रोडीज फीवर। ठीक है, तो ये आपका डे टू डे है ना, रोडीज का बहुत क्रेज चलता है आप जैसे बच्चों में। सो MTV रोडीज फीवर, जिसमें MTV से 3 पॉइंट्स आते हैं आपके। R 4 बार आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो 3 और 4 हो गए 7, और एक F 8 पॉइंट्स है। 8 में से कोई 6 तैयार करो। 6 में से तुम्हारे स्मार्ट कोड में अगर तुम एक एक लेटर का कर लोगे अच्छे से याद, तो 5 पॉइंट इज मोर देन इनफ। तो M से आता है मीनिंग, T से आता है टाइप्स, V से आता है वोटिंग राइट्स। तो लाइन में ये MTV मीनिंग, टाइप्स, वोटिंग राइट्स। R 4 बार आ रहा है, तो पहला आ रहा है रिटर्न ऑफ कैपिटल, दूसरा रेट ऑफ डिविडेंड, राइट्स एंड बोनस इशू, और R से रिस्क। तो 2 डिस्टिंग्विश में, R वाला इजी है, M वाला इजी है। M तो मीनिंग और रिस्क, वो भी याद रख सकते हो। और F से है फेस वैल्यू। सो इस तरीके से यू कैन रिमेंबर द डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का आप कैसे याद रख सकते हो बच्चे लोग? MTV रोडीज फीवर। पहले वाले का क्या था? मिस्टर स्पून, और इसका क्या है? MTV रोडीज फीवर। ओके, नेक्स्ट है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगेन M तो सब में ही रहेगा, याद रखना। तो इसका स्मार्ट कोड कुछ मैंने इस तरीके से बनाया है, यू मुंबा वर्सेस तमिल थलाइवास। तो ये भी तुम्हारी जान पहचान की स्पोर्ट्स की टीम है। सो अगेन यू कैन रिमेंबर द स्मार्ट कोड्स वेयर S 3 बार आता है, T 2 बार आता है यहाँ पे। तो M से तो मीनिंग है, जैसे आपको पता है, वर्सेस V/S, तो V से है वोटिंग राइट्स। S 3 बार आ रहा है, स्टेटस, सिक्योरिटी, सूटेबिलिटी। और तमिल थलाइवास, टाइप्स एंड टाइम ऑफ इशू, कब इशू होता है वो टाइम, स्टेटस क्या है, वोटिंग राइट्स किसको मिलती है, सिक्योरिटी वाइज कितना सेफ है। सो दिस यू कैन रिमेंबर, यू मुंबा वर्सेस तमिल थलाइवास। तो मुंबा का M वर्सेस का V, S 3 बार आ रहा है, तो मोर देन इनफ। मुंबई का याद रखो, M, V याद रखो, और 3S याद रखो, हो गया। या तमिल तलाइवास, TT। ओके, सो मीनिंग, वोटिंग राइट्स, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुटेबिलिटी, टाइप्स एंड टाइम ऑफ इशू। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल पे। अगेन इसका भी सिमिलर कोड बनाया है मैंने, मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स। तो जहां पे आपका R और S 2 बार आ रहा है, तो बेसिकली मुंबई इंडियंस का M याद रखो, वर्सेस VS याद रखो, S 2 बार आ रहा है, रॉयल चैलेंजर्स R और C। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। M से मीनिंग, अगेन V से वोटिंग राइट्स, S से स्टेटस, सोर्सेस, 2S हो गए, R से है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और C से आता है चार्ज ऑन असेट्स।
सो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो, शेयर और डिबेंचर, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का मैम ने मैच से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, कबड्डी से रिलेटेड आपको नाम दिए हैं, स्पोर्ट्स के नाम, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आराम से आप ये दो आंसर्स पढ़ के याद रख सकते हो। तो पहले का क्या था, मिस्टर स्पून, दूसरे का क्या था, एमटीवी रोडीज फीवर, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और आपका ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल आपका एक यू मुंबा वर्सेस तमिल थलाइवास और एक मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स। नेक्स्ट आता है राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स। तो शेयर्स और राइट शेयर और बोनस शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स को, राइट। एक प्राइस पे आप खरीदते हो, तो अपनी प्राइस से याद आया मुझे, आपने एमआरपी सुना है ना बच्चे लोग, तो बस वही आपका स्मार्ट कोड हो गया राइट शेयर और बोनस शेयर्स का, एमआरपी, जहां पे एम 2 बार आता है और पी 3 बार आता है। ऑलराइट, 6 पॉइंट ही है इसमें, उसमें से एम 2 टाइम्स, पी 3 टाइम्स, आर 1 टाइम, एमआरपी। तो एम से एक तो मीनिंग ही होगा, और दूसरा क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, आर से एक ही पॉइंट है, राइट टू रिनाउंस, और पी 3 बार आता है, पेमेंट, पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स एंड पर्पस ऑफ इशू। ठीक है, सो दिस इज द स्मार्ट कोड विच यू कैन रिमेंबर फॉर द हेड पॉइंट्स। फिर उसके बाद रामायण तो आप पढ़ के समझ ही जाओगे, और एनीवेज मैंने ये डिटेल में आपको समझाया ही है, मेरे वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, पूरे 12 चैप्टर्स के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप इन आंसर्स को याद रख सकते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ डिस्टिंग्विश जो उन्होंने आपके सामने रखा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो इसका स्मार्ट कोड बड़ा ही अच्छा आसान वाला है, न्यू स्लिम पीसी। ई से कुछ नहीं आता, लेकिन आई 2 बार आता है, तो NWSLIMPC। तो अगेन AM तो पता ही होगा आपको क्या है, मीनिंग है, ठीक है ना। N से क्या होगा, नेचर ऑफ एक्शन, कब लिया जाता है। W से क्या होगा, व्हेन डन, कब किया जाता है। S से होगा स्टैंप ड्यूटी। L से आपको दिख रहा है लायबिलिटी। अब जैसे मैंने बोला I 2 बार आता है, तो पहला आई है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, दूसरा होगा इनिशिएटेड बाय। एम से जैसे मैंने बोला मीनिंग है, पी से आप याद रख सकते हो पार्टीज इन्वॉल्व, एंड सी से आता है कंसिडरेशन। और एनीवेज आपको पूरा तो याद रखना नहीं है, तो न्यू स्लिम ऐसे भी याद रख सकते हो, खाली स्लिम याद रखा तो भी 4, पीसी याद रखा तो 2, हो गए ना 6 पॉइंट। तो कोई भी 6 याद रख लो, तो स्लिम के 4, पीसी 2 हो गए, मीनिंग तो कंपलसरी आना ही है। एस से था आपका क्या था, स्टैंप ड्यूटी था। आई 2 बार आता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इनिशिएटेड बाय। फिर पी से आता है आपका पार्टीज इन्वॉल्व, एन से आता है नेचर ऑफ एक्शन, डब्ल्यू व्हेन डन, सी से आता है कंसिडरेशन। सो एनी 6 यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस। तो मुझे 6 का फटाफट बता सकते हैं स्मार्ट कोड क्या था। पहले अगर आया आपका फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, तो क्या था, मिस्टर स्पून। फिर क्या था सेकेंड वाले का, वेरी गुड, एमटीवी रोडीज फीवर। फिर शेयर डिबेंचर का और ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल का, एक था यू मुंबा वर्सेस तमिल थलाइवास, और एक था मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स। उसके बाद हमने अब भी देखा एमआरपी, राइट्स इशू, बोनस इशू, और अभी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, न्यू स्लिम पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो इसका भी मैंने स्मार्ट कोड बहुत सिंपल सा बनाया, हर स्मार्ट कोड एम से ही शुरू होता है, ठीक है ना, वो याद रख लेना। एम स्वरा, SWWARA, तो एम स्वरा आपका स्मार्ट कोड है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड के लिए। तो जैसे एम से था आपका मीनिंग, W इज हु डिक्लेयर्स, दूसरा W व्हेन डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, तो W भी कॉमन है, देखो सारे डिस्टिंग्विशेस में। A है ऑथोराइजेशन, R है रेट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा A है अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो यानी 6 आपको याद रखने। तो स्वरा में S होगा आपका सोर्स,
ठीक है, एम होगा मीनिंग, हु डिक्लेयर्स, व्हेन डिक्लेयर्स, ऑथोराइजेशन, रेट ऑफ डिविडेंड एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो इससे आप गो थ्रू कर सकते हैं ये वाला आंसर। अब डिविडेंड के आंसर्स आप याद रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था शेयर और डिबेंचर और ओन्ड कैपिटल बोरोड का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वैसे ही इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और इंटरेस्ट का जुड़ा हुआ है। वो एम स्वरा था, ये एम ग्रोवर है, GROWAR। तो एम से तो मीनिंग है, जी से है गिवन टू हुम, आर से है रेजोल्यूशन, ओ से है ऑब्लिगेशन, फिर से डब्ल्यू व्हेन पेएबल, ए से अकाउंटिंग एस्पेक्ट और आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एम ग्रोवर फटाफट बता दो बच्चे लोग क्या है, मीनिंग, गिवन टू होम, फिर है रेजोल्यूशन, ऑब्लिगेशन, व्हेन पेएबल, अकाउंटिंग एस्पेक्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस हिसाब से आप ये वाला डिस्टिंग्विश रेफर करके पढ़ सकते हो। फाइनली कमिंग टुवर्ड्स द 9th वन, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसका भी स्मार्ट कोड बड़ा ही चिंदी है, जबकि इसमें सिर्फ 5 ही पॉइंट है। मिस्टर VIP, और यहाँ पे एम 2 बार आ रहा है। तो पहला एम तो है मीनिंग, यहाँ पे दूसरा एम है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। VIP, V से है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, I से है इंटरमीडियरी और P से है पार्टीज इन एक्शन। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट सबसे इजी है बच्चे लोग याद रखने का, मिस्टर VIP। ओके, एंड फाइनली कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसका भी स्मार्ट कोड एम से ही शुरू होगा, जैसे तुम्हें पता है। इसका स्मार्ट कोड है मिनी ट्रिप, तो MTRIP। 5 पॉइंट भी याद रखा तो मोर देन इनफ है। इसमें 8 पॉइंट है, जहां पे I 2 बार आ रहा है और R 3 बार आता है। तो I 2 और R 3, खाली IR भी याद रखा और M याद रखा, तो हो गए ना 6 पॉइंट। तो मिनी एम तो मीनिंग ही है, जैसे आपको पता है। T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, I स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशंस 2 आता है, ठीक है। फिर R स्टैंड्स फॉर रिस्क, एक तो रिस्क होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, एंड रोल इन इकोनॉमी है। फिर आपके पास आता है T, टाइम पीरियड, फिर आता है P, पर्पस ऑफ बोरोइंग, क्यों बोरो किया जाता है, किस लिए बोरो किया जाता है। सो फिर से मीनिंग, T से टाइम पीरियड, R 3 आता है, एक है रिस्क, एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इसका है रोल इन इकोनॉमी, एक्स्ट्रा पॉइंट। I से आता है इंस्टीट्यूशंस और एक है इंस्ट्रूमेंट्स। P से आता है आपका पर्पस ऑफ बोरोइंग। तो बच्चे लोग ये डिस्टिंग्विश भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 32 मार्क्स अब तक के हमारे डिस्कशन में कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोग लॉग इन करके मुझे सुनिएगा, बिकॉज हम पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं 3 सेशंस में, जैसे मैंने आपको बताया। सो फर्स्ट सेशन में आई हैव कंप्लीटेड ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इससे फायदा लग रहा है बच्चे लोग, तो प्लीज अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, ताकि उनको भी फायदा हो सके और वो जो टेंशन लेके बैठे हैं कम से कम वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। सो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड यस प्लीज कीप स्टडिंग। छोड़ना मत, एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं। तो एग्जाम होंगे ये पक्का है। तो बच्चे लोग अपने फायदे के लिए प्लीज पढ़ाई छोड़िएगा नहीं। All right. So thank you so much, बच्चे लोग, for listening to me. I stop here for the day.